السلام علیکم۔ یہ دیکھیں جی، یہ گھریلو حلوہ ہے، گھریلو حلوہ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ آج آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں گھریلو حلوہ۔ تو حلوے کے ساتھ ہی جناب میں بات کروں گا موجودہ سیٹ اپ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بہادری۔ مولانا صاحب نے چیف جسٹس کو وہ کھری سنائی ہے جو میں نے دوپہر کو نہیں سنائی، کہ جی پورے پاکستان کو چیف جسٹس نے نوٹس کر دی ہے عطا بندیال صاحب نے، تو اس سے بہتر ہے کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں اور آ کے حکومت بھی کریں۔ ہر چیز جو آپ سے پوچھ کے کرنی ہے کہ کس کا تبادلہ کرنا ہے، کس کا نہیں کرنا، کس کا نام ECL پہ ڈالنا ہے، کس کا نہیں کرنا، اور کون سے پراسیکیوٹر کو لگانا ہے، کون سا نہیں کرنا، تو پھر جناب علی بالکل آپ حکومت میں آ جائیں۔ بسم اللہ۔ پھر میں نے آپ کو صحیح مشورہ دیا تھا نا، مجھے سارے کہہ رہے تھے جی آپ کے اوپر کنٹیمپٹ لگ جائے گا۔ میں نے کہا کیسے لگ جائے گا بھائی، جب آرڈر ہی غلط ہے، غلط کو غلط نہ کہیں، چاہے چیف جسٹس ہی کہے غلط تو غلط ہی ہے۔ اور ابھی تو اس کے اوپر بار کونسلوں کا ریئیکشن آنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ کہہ دی ہے کہ ہمیں کام کیوں نہیں کرنے دے رہے آپ، ہر طرف سے رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا دوں، ان کا اشارہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھی تھا، ہمیں کام ہی نہیں کرنے دیا جا رہا، فری ہینڈ ہی نہیں کرنے دیا جا رہا۔ میں نے شہباز شریف صاحب کو کہا تھا، یہ مجھے آج سارا دن غصہ رہا ہے عطا بندیال صاحب کے اوپر۔ میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ اس سے بہتر ہے استعفیٰ دے دیں۔ مریم نواز صاحبہ نے آج سرگودے میں بھی کہہ دی ہے۔ بے شک ہمیں اس چیز کا افسوس ہے کہ یہ حکومت نہیں چلا پا رہے، اور اتنی جرت اور بہادری کا بیان شہباز شریف نہیں دے سکتا جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کراچی میں دی ہے۔ انہوں نے پورا دیا ہے، ARY کے حساب سے بھی دیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے بھی بڑی جرت کا مظاہرہ کیا، لیکن نہیں کر رہا تو صرف ہمارا وزیر اعظم جو شہباز شریف ہے وہ نہیں کر رہا، جس کو کرنا چاہیے تھا۔ دبنگ تقریریں کرے کہ مجھے کام نہیں کرنے دیا جا رہا، آپ عوام بتائیں میں کیا کروں۔ قسم خدا کی یہ سیاست کرنا ان کو نہیں آ رہا۔ میں آپ کو، ہمارے اندر بھی بڑی کمزوری ہیں، لیکن جو شہباز شریف صاحب ہے نا، اس کی جب سے نواز شریف صاحب گئے اس نے مسلم لیگ نون کا ستیہ ناش کر دیا۔ یہ تو عوام ہے جو ابھی بھی نون لیگ کو پسند کرتے ہیں، کیونکہ ادھر وہ جو منحوس اعظم ہے، منافق اعظم ہے، جو عمران خان، جو نشئی ہے، جس کو مریم نواز نے آج کھری سنائی ہیں، اس کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتا۔ ایک مجھے دلیری والا بیان شہباز شریف کا دکھا دیں جب سے نواز شریف صاحب باہر گئے، میں آپ کو مان جاؤں۔ ابھی اس کی قیادت میں الیکشن ہوئے نا، تو ابھی مجھے ایک بندے نے فون پوچھا کہ بتائیں جی نون لیگ جیت جائے گی؟ میں نے کہا ہماری دعا تو ہے کہ نون لیگ جیت جائے، ہماری دعا ہے، خواہش بھی ہے، لیکن شہباز شریف کی زیر نگرانی پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ ڈرپوک آدمی کا کام سیاست ہے ہی نہیں۔ اگر آپ ڈرپوک ہیں نا تو آپ سیاست نہ کریں، کوئی کاروبار کر لیں۔ جیسے میں ویڈیو آپ کے سامنے بنا رہا ہوں کہ میں ڈرپوک ہوں، تو میں قانونی ٹی وی بند کر دوں یار، بند کر دوں، پھر میں آپ کا سار کیوں کھا رہا ہوں؟ اگر میرے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے، میں سینئر سپریم کورٹ کا سینئر ترین ایڈوکیٹ ہوں، اور میرے اندر اتنی بھی جرت نہیں ہے کہ میں سچ کو سچ کہہ سکوں، تو پھر میں آرام سے رہوں نا، میں پھر وی لاگ کیوں بناتا ہوں؟
आपके पास क्यों आता हूँ? आपको रोजाना कहता हूँ भाई वीडियो वीलॉग देखो, मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, आगे फैलाओ, ये कहता हूँ ना। अगर मेरे अंदर हिम्मत नहीं है तो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। आज मुझे मेरे जूनियर ही कह रहे थे कि सर जी आपने बंदयाल की बड़ी क्लास ली है। मैंने कहा मैं इससे भी ज्यादा ले सकता हूं। मैं कोई उससे डरता हूं? वो जज है तो मैं ऑफिसर हूं। वो अगर जज है अपना लाहौर इस्लाम चीफ जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं भी सुप्रीम कोर्ट का ही ऑफिसर हूं ना। मैं को उसके मोहताज तो नहीं कि वो मुझे तनख्वाह तो नहीं देता कि मैं उसकी सही बात गलत बात को भी गलत ना कहूं, चाहे हाई कोर्ट का जज हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो। तो अगर मैं सही को सही और गलत को गलत नहीं ना कह सकता, तो फिर मेरा फर्ज है कि आराम करके ये चैनल बंद कर दूं, कानूनी टीवी। बस मैं रहूं, आराम से रहूं जैसे और लोग रह रहे हैं। लेकिन अगर मैंने चैनल बनाया है, मैंने उसका बेड़ा उठाया है और मैंने कहा जी मैं लोगों में उसकी अवेयरनेस पैदा करूं, फिर मेरा फर्ज है कि मैं हक को हक, सच को सच कहूं, बातिल को बातिल कहूं और जुर्रत के साथ कहूं, जुर्रत के साथ। शहबाज शरीफ, तुम अगर मुस्लिम लीग नून के सदर हो तो अपने अंदर जुर्रत भी पैदा करो। अवाम सारी नून लीग के साथ है। मैं बता रहा हूं, आप नून लीग का मुझे भी सदर बना दें, अवाम ने इसी तरीके से वोट देने। अवाम नून लीग से मोहब्बत करती है। नून लीग को कोई इदारों की जरूरत नहीं है, कोई सहारों की जरूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि तौहीन जिंदगी है सहारों की जिंदगी। और उनका पसंदीदा शेर कौन सा है पता है आपका नवाज शरीफ का? ए तायरे लाहूती, उस रिज्क से मौत अच्छी जिस रिज्क से आती हो परवाज में कोताही। वो ये कहते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ बिल्कुल वो सही कह रहे हैं। वो मैं बता ही नहीं सकता। एस्टेब्लिशमेंट का सवाल करें तो वो कहता है चुप चुप, आपने कोई सवाल ही नहीं ये पूछना, सवाल ही नहीं पूछना, ना मैंने बोलना है। तो फिर तुम लीडर किस चीज के बने फिरते हो भाई? फिर आगे आने दो। अभी राना सनाउल्लाह को शहबाज शरीफ ने मना किया कि इमरान को गिरफ्तार नहीं करना, शीदे टली को गिरफ्तार नहीं करना। क्यों मना किया? डरपोकी की वजह से। डरपोक बंदा कभी लीडर नहीं बन सकता। बस लीडर का क्या काम है? इलामा इकबाल लीडर के बारे में क्या कहते हैं? जो लीडर बनना चाहे ना, सुखन दिल नवाज, हाँ उधर निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए। जो कारवान का अमीर बनना चाहता है ना, उसकी निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जां पुरसोज। हाय, मैं कैसे एक्शन करके आपको बताऊं, कसम खुदा की। वो लीडर है। डरपोक लीडर नहीं बन सकता। उसको आप 10 कलाशनकोव दे देना, वो फायर ही नहीं कर सकता। ये शहबाज शरीफ के अंदर ये चीज है। ये वो बेहतरीन काम करने वाला है, लेकिन वो जो है ना ऐन मौके पे वो ना एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट के कैसे खड़ा हो सकता है, जैसे मौलाना फजल रहमान साहब खड़े होते हैं, जैसे मरियम नवाज साहबा खड़ी होती हैं, जैसे नवाज शरीफ खड़ा होता है। शहबाज शरीफ के अंदर वो चीज़ नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए जो लोग सवाल पूछ रहे हैं ना कि आइंदा मुस्लिम लीग नून का क्या बनेगा, मैंने आपको बताया ना 10 सीटें तो ये साउथ पंजाब से, ये सेंट्रल पंजाब से, सॉरी मैंने पहले भी साउथ पंजाब कह दिया, गुजरांवाला गुजरात सियालकोट से 10 सीटें इन्होंने मानी है जरदारी को। बताएं 10 इधर से वो लेगा। इसको कहते हैं वस्ती पंजाब या सेंट्रल पंजाब, ठीक है। ये चकवाल, जेलम, गुजरांवाला गुजरात, सियालकोट, कसूर, लाहौर,
ये वस्ती पंजाब है। 10 इधर से उसको नून लीग दे देगी मुआहदे के मुताबिक, और 10-15 वो उधर से ले लेगा साउथ पंजाब से, सराइकी इलाके से। तो 25 अगर इधर से वो ले जाता है तो उसकी हुकूमत बनती है। क्या कहते हैं, उसकी हुकूमत बनती है। और उसने KPK में मौलाना फजल रहमान साहब के साथ इत्तेहाद करना है, जरदारी ने। ये आइंदा का लाए अमल बता रहा हूँ आपको। तो आप इसमें देखें नून लीग कहाँ खड़ी है, कहाँ खड़ी है नून लीग, आपको कहीं नज़र आ रही है? तो मैं इजी मूड में अब गपशप लगा रहा हूँ। पहले मुझे थोड़ा सा गुस्सा चढ़ा हुआ था, लेकिन अब मैं इजी मूड में आ गया हूँ। आइंदा के सिनेरियो पे देख रहे हैं ना, क्योंकि हर जगह अफवाह यही है कि जनाब आइंदा 24 घंटे में असम्बलियाँ टूट रही हैं, निगरान हुकूमत बन रही है, इस हुकूमत को कोई काम नहीं करने दे रहा। वैसे तो देखें ना, बेसिकली असूली तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने इमरान खान को भी शुरू में मशवरा दिया था, जब वो 4 वोटों से जीता है ना, मैंने कहा ये हुकूमत नहीं चलेगी, नया इलेक्शन कराओ, ये कानूनी प्रोसेस है। अगर आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, अगर एक मेंबर भी आप शहबाज शरीफ का इधर उधर होता है तो शहबाज शरीफ की हुकूमत गिरती है। ठीक है, तो बेसिकली तो इनको पक्का हाथ डाल के अदम एतमाद करना चाहिए था। ठीक है, अब ताहयात नाहली वाला वो भी मसला जो है ना, वो बीच में अभी तक लटका हुआ है, और अभी ये लटका हुआ है तो ऊपर से गंद घोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जनाब जो वोट डाले गए हैं वो उनकी गिनती नहीं करेंगे हम, जो डाले गए हैं, जो मर गए हैं, जो फौत हो गए हैं, उनको दोबारा जिंदा करके लाओ जी। ये फैसला इन्होंने किया। इन फैसलों की हम तारीफ करें? हम कोई गुलाम हैं? हम कोई गुलाम हैं जो आपकी हर बात माने? एब्सोल्युटली नॉट। ये मैं सुप्रीम कोर्ट को कह रहा हूं कि हम कोई गुलाम हैं। तो बात यह है दोस्तों कि जो आइंदा का इलेक्शन है ना, वो सारी प्लानिंग जरदारी साहब ने तो मुकम्मल कर ली है। मैं अब भी आपको कह रहा हूं, शहबाज शरीफ अगर मुस्लिम लीग नून के सदर रहते हैं तो आइंदा 5 साल ये नहीं काट सकते। अब मैं आपको मशवरा देने लगा हूँ। पहला मशवरा ये है कि मुस्लिम लीग का सदर मरियम नवाज को बना दो, बल्कि इससे भी पहला है, इससे भी पहला। ज़रा आप गपशप लगाएं, मेरे साथ लगाएं गपशप। अगर वीडियो लंबी भी हो जाए तो कोई बात नहीं, ये मुझसे बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं। पहला तो ये है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आए, ये मेरा पहला मुतालबा भी है। कानूनी टीवी का भी मुतालबा है, मेरा भी है, मैं बतौर चेयरमैन जस्टिस पार्टी का भी है। हाँ, जस्टिस पार्टी के लिए भेजें भाई अपने शनाख्ती कार्ड, उसके लाइफ मेंबरशिप आपको देते हैं, और स्मार्ट कार्ड बनाना है तो तस्वीर भी भेजें और शनाख्ती कार्ड भी भेजें। मेरे व्हाट्सएप के फ़ोन नंबर 030047255752। आप मेंबर बन जाएंगे। बल्दियाती इलेक्शन हो, कौमी हो, सूबाई हो, उसमें हम हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह ताला नून के साथ मिल के। ठीक है, पहला मेरा मुतालबा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए, चाहे जेल भी जाए ना, वो पाकिस्तान में आए। ठीक। दूसरा मुतालबा, मुस्लिम लीग नून का सदर मरियम नवाज को बनाया जाए। ये मेरा दूसरा मुतालबा है। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी, नून लीग को कामयाबी मिल जाएगी, मिल जाएगी। तीसरा मेरा मुकाबला है कि अगर किसी सूरत भी ये मुस्लिम मरियम नवाज को नहीं बनाते, नवाज शरीफ भी नहीं आता, फिर हमजा शहबाज को बनाए। उसके अंदर भी करंट है, मैंने देखा है। तो इसका क्या मतलब है मेरी सारी गुफ्तगू का कि भाई शहबाज शरीफ को ज़रा साइड पे कर दो। उसकी कमर जवेद बाजवा में हमेशा दर्द रहता है, जो उसकी कमर जवेद बाजवा है ना, उसमें हमेशा दर्द रहता है ना दर्द। उसको साइड पे करो, कोई आगे लाओ। मैं आपको ऐलान करता हूं जनाब, ये सारे आप छोड़ दें जी, सजा हो गई है ये वो। शायद हकान अब्बासी को बना दो सदर। आप यकीन करें अगले 5 साल मुस्लिम लीग नून के हैं। लेकिन ये भी सुन लें, अगर ये सारा काम नहीं होता जो मैं ये तजवीज़ें दे रहा हूँ,
नवाज शरीफ भी नहीं आते, मरीम नवाज भी नहीं आती, हमजा भी नहीं आता, शायद खाकान अब्बासी भी नहीं आता, तो फिर मुश्किल है जी। ये शहबाज के बारे में मैं कहता हूं कि इन तिलों में तेल नहीं है। वो वक्त गया जब खलील खान फाख्ता उड़ाया करता था। नवाज शरीफ के होते हुए शहबाज शेर है, असली शेर है शहबाज, ये नहीं हम कह रहे, लेकिन उसमें फैसला करने की कुव्वत नहीं है। उसकी कमर जवेद बाजवा में दर्द रहती है, कमर में, सारी मेरा मतलब कमर में है, आप जो मर्जी इसका मतलब लेते रहे, मेरी मतलब कमर है उसकी, कमर, ठीक है। जरदारी पूरी कोशिश कर रहा है कि अगली हुकूमत उसकी हो, और मौलाना फजल रहमान साहब को वो बहुत प्यार मोहब्बत से कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे हैं, उसकी कोई ऐसी प्लानिंग ही नहीं है। वो तो सहारे ढूंढ रहा है यार, सीधी बात मैं करूं, वही उसको लॉलीपॉप, मेरी पुरानी वीडियो निकालो, उसको लॉलीपॉप दे दिया एस्टेब्लिशमेंट ने कि अगली बारी तेरी है। ये लॉलीपॉप होता है जिसकी हकीकत नहीं होती, ऐसे झूठ मूठ का चूसो भाई लॉलीपॉप, होता कुछ नहीं है। जैसे सुराब होता है, धोखा, वो है। तो ये इसी के ऊपर खुश है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट ने कह दिया है कि शहबाज शरीफ अगली बारी तेरी। तो आगे मुकाबला होना है जरदारी का, और जरदारी क्या प्लानिंग है कि पंजाब में इनको तोड़ा जाए, पंजाब को ब्रेक किया जाए। 10 सीटें तो वो ले गया ना जहां जो पक्की नून लीग की सीटें हैं, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट। अब वो चाहता है कि 10, 15, 20 पीटीआई भी यहां से ले ले, उसको भी वो नरम रास्ता देगा। पीटीआई 10-15 ले लेती है, पीपल्स पार्टी साउथ पंजाब को मिला के 20-25 वो ले लेती है, तो नून लीग की जो कमर है ना, वो कमर जवेद बाजवा हो जाती है, यानी कि कमर टूट जाती है। फिर नून लीग वजारत उज़्मा नहीं ले सकती, ठीक है। ये मैं जो है ना तजिया कर रहा हूँ आइंदा के लिए। अब जो लोग सवाल पूछ रहे थे कि आइंदा इलेक्शन में क्या होगा, तो मैंने बता दिया है। आइंदा अगर इलेक्शन में भरपूर कामयाबी लेनी है ना, तो मुस्लिम लीग नून, सुन लो, एक स्टूडेंट की आवाज भी सुन लो, मुस्लिम लीग नून सिर्फ मौलाना फजल रहमान से इत्तेहाद करे, बस। नून लीग की पक्की हुकूमत, पक्की। मौलाना फजल रहमान साहब ग्रेट आदमी है, मैं उनसे वैसे भी मुतासिर हूं। मौलाना फजल रहमान के साथ पींगे बढ़ा रहा है जरदारी। मैं आपको एक और बात भी बता दूं, मौलाना फजल रहमान साहब सरप्राइज भी दे सकते हैं। जब ये जलसे वलसे शुरू होंगे ना, एक माहौल बन जाएगा, तो फिर माहौल काफ़ी तकसीम हो जाएगा और पीटीआई पीछे जाएगी, क्योंकि कारकर्दगी की बातें होंगी, महंगाई की बातें होंगी, तो सारे लोग जो है पीटीआई को गालम गलोच करेंगे कि 4 साल इन्होंने पाकिस्तान को तबाह किया है। और फिर उसमें ये होगा कि भाई इन 4 सालों में जद्दोजहद किसने की है, तो जद्दोजहद मौलाना फजल रहमान ने की है। मानेंगे आप, मानेंगे ना। हर जगह पे इन्होंने मिलियन मार्च किया है, इन्होंने जलसे किए हैं, जुलूस किए हैं, फिर लोगों की हमदर्दी इधर होगी। क्योंकि नून लीग ने तो एक जलसा भी सियासी तौर पे नहीं किया जो मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं, ये ज़िमनी इलेक्शन में कर रहे हैं। मैंने तो कहा है कि दिल नून लीग के साथ है, लेकिन सर उसकी प्लानिंग भी तो होनी चाहिए ना कि आपने वोट कैसे लेना है। अब मैं ये खास गुर बता रहा हूं, मरीम नवाज साहबा आपको बता रहा हूं, मौलाना फजल रहमान साहब से इत्तेहाद कर लो, नून लीग की हुकूमत पक्की है, पक्की, ठीक है जी। तो ये मेरा तजिया है जी कि आइंदा की सियासत क्या होगी। ये भी गंद ही है, ये जो शहबाज शरीफ ने गंद खोला ना, इस्तीफा दे रहा है, असम्बलियां तहरील कर रहा है, ये इसकी बुजदिली है। इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, लेकिन देर है, हम क्या करें, हम रोक सकते हैं उसको।
उसको अपोजिशन ने कहा है, हमारी अपोजिशन ने मेरे मुंह से पीडीएम ने, कि हम तुम्हें इख्तियार देते हैं कि तुम बोल्ड फैसले करो या तुम इलेक्शन कराओ। तो ये बोल्ड फैसले नहीं कर सकते, बोल्ड तो है ही नहीं ना सर, ठीक है। तो ये मेरे जनाब मौलाना फजल रहमान साहब के लिए और मरीम नवाज साहबा के लिए मशवरे हैं। तो अगर आपको ये तजिया कैसा लगा है आप इसमें कमेंट्स करें। आप क्या चाहते हैं कि आइंदा का सिनेरियो कैसा होगा, आइंदा की पॉलिटिक्स कैसी होती है अगर कल या परसों असम्बलियाँ टूट जाती हैं, ठीक है, और इलेक्शन का ऐलान हो जाता है, तो आपको क्या समझता है? मैं ये समझता हूँ कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान को इकट्ठा इलेक्शन लड़ना चाहिए, ठीक है। जरदारी की बजाय वो मौलाना फजल रहमान को सीटें दें, ठीक, ये जरदारी को दे रहे हैं। तो ये मेरा जनाब फुल तज्जिया है, आप क्या फील करते हैं आप भी ज़रा बताएं। थैंक यू। वीडियो लंबी हो गई है, मैं माजरत खा हूँ, ठीक है जी।